Hello guys, I am Hitesh Tripathi and I am your instructor via Newton School, and in this video, that is day 5 of this playlist OA problem set. Okay, we are going to see a problem that is swap nodes in pair in linked list. Okay, so अच्छा question है, standard question है, and we will see this question. First we will see problem statement for this, and उसके बाद हम linked list के questions और approach linked list की is easy होती है, but how we can code that thing हम वो देखने वाले हैं इस प्रॉब्लम में बेसिकली. ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो लेट्स जस्ट सी व्हाट इज न्यूटन स्कूल. So as we all know that Newton School is an e-learning platform which have different programs especially designed for you. Their first program they have for you is pay after placement program, and you can see that banner here also, that application for full stack development course October batch is open right now. So what they have in this program is that you don't need to pay even a single penny until and unless you get placed in any of these companies like Google, ThoughtWorks, Zomato, Xiaomi, Byju's, and all these companies they have tie-up with. Okay, so what they do is they will teach you for 6 months, they will make you a full stack developer, and after that they will also get you placed in these companies for minimum 5 lakh CTC. Okay, so if you want to apply for this program, that is full stack development course for October batch, you can just go to their website and apply now. Second thing they have for you is Launchpad initiative, under which they are providing you different courses related to computer science, absolutely for free. Okay, you can just come here, sign up or log in for free and start learning for free. You will also get certificates after completion of any course. You can also do quizzes there, and you can also use Newton School IDE to code that part, coding part. Okay, so everything is here and everything is for free. So you can just come and check their Launchpad initiative. At the end, if you haven't subscribed this YouTube channel, that is Code Kitchen Newton School, just go and subscribe this YouTube channel. That is, we have different playlists for you, and all these playlists are getting regularly updated, and all this content is for free and authentic content. So you can just go and check this playlist and subscribe this YouTube channel. So now let's just begin with today's video, and today's video we are going to see swap nodes in pair in linked list. Okay, you can add in here. So हमने लिंक लिस्ट डीएसए की प्लेलिस्ट में ऑलरेडी पढ़ लिया था, कैसे लिंक लिस्ट में नोड्स होते हैं और कैसे हर नोड एक अगले नोड को पॉइंट करता है, एंड एट द एंड वी हैव फॉर लास्ट नोड द पॉइंटर इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स नल. ओके, एंड ये सारी चीज़ें हमने लिंक लिस्ट के बारे में बेसिक चीज़ें पढ़ ली थी, और कैसे हम लिंक लिस्ट का कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर का यूज़ करके करते हैं, और कैसे उसको कोडिंग पार्ट कैसे हम लिंक लिस्ट का करते हैं वो भी हमने C++ में देखा था. सो इन दिस वीडियो वी विल सी problem statement, after that we will see some examples, and after that we will code this thing. Okay, so problem statement, given a linked list, swap every 2 adjacent nodes and return its head. Okay, तो हमें एक लिंक लिस्ट गिवन है, सिंपली सपोज दिस, एंड हमें हर दो एडजेसेंट नोड्स को स्वैप करना है. ठीक है, कैसे 1 2 है, 1 2 को स्वैप कर दो सिंपली आपस में, एंड 3 4 है, 3 4 को आपस में स्वैप कर दो 4 3. ओके, तो स्वैपिंग के बाद कुछ ऐसे लिंक लिस्ट मिल जाएगी. एंड एक एग्जांपल तुम्हें डायग्राम में भी गिवन है, सपोज ये तुम्हारी इनिशियल लिंक लिस्ट थी, यू हैव टू स्वैप दीज 2 नोड्स विद ईच अदर, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू स्वैप दीज 2 नोड्स विद ईच अदर. ओके, तो यू कैन सिंपली चेक कि क्वेश्चन ईजी है, क्वेश्चन की अप्रोच भी ईजी होगी, बट मेन थिंग कोडिंग पार्ट, इसका एक एग्जैक्ट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा और उसको कोड कैसे करेंगे हम ये देखेंगे मेनली. एंड सेकेंड थिंग, वी आर गोइंग टू डू रिकर्जन इन दिस, कैसे हम रिकर्जन से सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन ये देखने वाले हैं. ठीक है, तो फर्स्टली अप्रोच डिस्कस करते हैं. अगर मुझे इन दोनों नोड्स को स्वैप करना है लिंक लिस्ट में, सो व्हाट आई विल सिंपली डू इज, मैं जो ये लिंक है इस लिंक को यहाँ से हटा दूंगा, है ना, एंड आई विल सिंपली पॉइंट दिस पॉइंटर टूवर्ड्स इट्स हेड. ओके, तो ये जो पॉइंटर है ये सिंपली क्या करेगा, ये इसको पॉइंट करेगा, एंड ये जो पॉइंटर है मैं इसको यहाँ से हटाऊंगा, ये पॉइंटर भी हट गया, ये पॉइंटर भी हट गया, एंड दिस पॉइंटर विल सिंपली पॉइंट्स टू दिस. ओके, अब एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड हियर इज दैट जो 2 है तुम्हारा वो तो यहाँ पे आ गया, एंड 2 इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स 1. ओके, एंड 1 इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स 3 राइट नाउ, एंड जो तुम्हारी आगे की लिंक लिस्ट थी वो अभी के लिए सेम थी. तो फर्स्ट 2 नोड्स ऑलरेडी गेट रिवर्स्ड, 1 और 2 रिवर्स हो गए. मैंने सिंपली क्या किया, इसकी लिंक इसके प्रीवियस नोड्स को पॉइंट कर दी, एंड जो इसका प्रीवियस नोड था उसकी लिंक इसको पॉइंट कर दी इसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट को. ठीक है, फाइन.
बट आफ्टर दैट या तो मैं अपने जो ये मेरा प्रीवियस नोड था, ये प्रीवियस था और मान लो और ये नेक्स्ट था, ठीक है। अब मैं सिंपली क्या करूं, इसको प्रीवियस बना लूं और इसको नेक्स्ट बना लूं। वन ऑप्शन इज दिस, ओके। और अदर ऑप्शन कैन बी, मैंने स्टार्टिंग में इस वीडियो के आपको बताया था दैट वी कैन यूज रिकर्जन फॉर दिस। हाउ? नाउ आई एम टेलिंग यू दैट कैसे हम रिकर्जन यूज कर सकते हैं। सपोज मैं हर टू नोड्स को एक सेपरेट सब प्रॉब्लम बना लूं। सपोज ये मेरे पास लिंक लिस्ट थी, ओके, आई हैव दिस लिंक लिस्ट, ये मेरे पास लिंक लिस्ट थी। आई मेड दिस एज अ फर्स्ट और प्रायोरिटाइज प्रॉब्लम, ओके, जहाँ से मेरी रिकर्जन प्रॉब्लम शुरू हो रही है, ठीक। उसके बाद एग्जैक्टली मैं क्या करूँगा, इस वाले सेक्शन को एक सब प्रॉब्लम बना लूँ। इसकी सब प्रॉब्लम क्या बन जाएगी, ये वाला पार्ट ऑफ लिंक लिस्ट। एंड एज सून एज मुझे जो भी पार्ट है उसमें जो वैल्यूज़ हैं वो नल मिल जाएं, और यू कैन से जो भी इसके नोड्स हैं दे आर पॉइंटिंग टूवर्ड्स नल, I can break the recursion here, okay, or you can say that this is your base case, okay, fine. So suppose मुझे एक फंक्शन बनाना है। अब मैं अगर रिकर्जन फंक्शन की बात करूं, एंड इन रिकर्जन फंक्शन आई हैव वन नोड और यू कैन से रेफरेंस टू द हेड ऑफ द लिंक लिस्ट। मैंने एक रेफरेंस टू हेड ऑफ द लिंक लिस्ट दिया, मेरे पास इस फंक्शन में हेड है, ओके। व्हाट आई विल सिंपली चेक इज जो हेड है, ओके, दैट मीन्स करेंट नोड, जो मेरा हेड है फंक्शन में आया है एज एन आर्गुमेंट, एंड इट्स नेक्स्ट नोड, दैट इज हेड एंड नेक्स्ट नोड ऑफ हेड, जिसमें मुझे स्वैप ऑपरेशन परफॉर्म करना है। दीज टू नोड्स कांट बी नल, ओके। क्या ये दोनों नोड्स नल हो सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज इन दोनों में से अगर कोई भी नल है then our swapping operation will not take place, okay. So I will simply check that if these two nodes are not null. If they are null, what we will simply do, we will return our recursion function from here, okay. यहाँ से हम return हो जाएंगे। Otherwise what we will simply do, we will perform the swapping part here, or you can say we will do the recursion for this sub problems. But before that, इस सब प्रॉब्लम की रिकर्जन के पहले हमें क्या करना है, वी हैव टू स्वैप दीज टू नोड्स, एंड दैट वी कैन सिंपली डू एज जो हमारी ये इसकी पॉइंटर है, दैट इज हेड का जो नेक्स्ट है, हेड का नेक्स्ट है। नाउ दिस थिंग विल पॉइंट टू हेड, और यू कैन सिंपली स्टोर हेड नेक्स्ट इन सम अदर नोड, ओके, एंड दिस नोड विल सिंपली पॉइंट्स टू हेड। सिंपल सी चीज़ है, आई एम राइटिंग दिस अगेन, ठीक है। जो हेड का नेक्स्ट है दैट इज स्टोर्ड इन नोड, एंड दिस नोड विल सिंपली पॉइंट्स टू प्रीवियस हेड, ओके, एंड आफ्टर दैट हेड विल सिंपली पॉइंट्स टू whom, नोड नेक्स्ट, ठीक है। नोड नेक्स्ट, नोड का नेक्स्ट क्या था, सिंपली दिस 3, ओके। तो अब तुम बोलोगे कि नोड की वैल्यू तो ऑलरेडी चेंज हो चुकी है, क्योंकि नोड तो हेड नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा है, और जो नोड का नेक्स्ट है उसको हम हेड को पॉइंट करा चुके हैं। तो दैट थिंग वी कैन हैंडल विद एक्स्ट्रा नोड, और यू कैन से टेम्प नोड की मदद से वो हम हैंडल कर लेंगे, दैट इज़ नॉट एन इशू, ओके। तो करेंट स्टेप मेरा हो गया कि मुझे इसका पॉइंटर हेड को पॉइंट कराना है। ये बेस केस चेक करने के बाद रिकर्जन फंक्शन में आई हैव टू पॉइंट पॉइंटर ऑफ दिस नोड टू द हेड, एंड जो हेड का पॉइंटर है उसको दिस नोड के नेक्स्ट को पॉइंट कराना है, दैट इज इसको, ठीक है। अब ये एग्जैक्टली होगा क्या, तो मैं ये बोलूँगा कि ये जो नोड है ये क्या हो जाएगा, फन ऑफ, सिंपल सी चीज़ है, दिस नोड, और यू कैन राइट सिंपली 3 है, ओके, और यू कैन राइट नोड नेक्स्ट, ठीक है। अब हुआ क्या एग्जैक्टली, अब ये जो रिकर्जन फंक्शन है, ठीक है, ये रिकर्जन फंक्शन के लिए अब एग्जैक्टली दिस इज द न्यू हेड, दिस इज द न्यू हेड ऑफ द लिंक लिस्ट, ठीक है। एंड ये जो 4 है
this is the new null node, you can say. Okay, not null node, sorry. This 3 is new head, okay, and new head, and this 4 is new head next. अब स्वैपिंग ऑपरेशन इन दोनों में परफॉर्म होगा सिंपली, एंड आफ्टर दैट जो भी नेक्स्ट न्यू हेड बनेगा वो इसके जस्ट बाद वाला बनेगा, तो स्वैपिंग ऑपरेशन उन दोनों में परफॉर्म होगा. एंड एट द एंड व्हेन एवर वी विल गॉट द एंड ऑफ लिंक लिस्ट, वहाँ पे मेरा फंक्शन रिटर्न हो जाएगा, सिंपली रिकर्जन फंक्शन. सो इन दिस वे वी कैन यूज रिकर्जन टू फॉर दिस प्रॉब्लम. Now I'll show you the code and you will get it simply. If you still have any doubt in the approach, you can simply ask me in comment section. तो in starting I'll show you the structure of the linked list. ठीक है, जो main part होती है, जैसे जिसको यूज करके तुम linked list कोड करने वाले हो. Suppose ये तुम्हारा structure है तुम्हारी linked list का, ठीक है. एक linked list struct list नोड किया, एक नोड का structure है, एक नोड में उसकी वैल्यू होगी और you can say data, and next thing will be its pointer, नेक्स्ट पॉइंटर यू कैन से. उसका टाइप क्या होगा, सिंपली नोड, बिकॉज इट इज पॉइंटिंग टू अ नोड. ओके फाइन. देन ये कुछ इसके कंस्ट्रक्टर्स हैं. आई होप इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. इफ यू विल सिंपली राइट लिस्ट नोड एनीवेयर, ठीक है. सपोज मैंने अगर कहीं पे ऐसा लिखा, अगर मैंने कहीं पे भी ऐसा लिखा, ठीक है, तो एग्जैक्टली हुआ क्या, मेरा एक p नोड बन गया. कंस्ट्रक्टिंग, आई एम कंस्ट्रक्टिंग अ नोड p हु हैज वैल्यू 0 एंड इट्स नेक्स्ट पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू नल. ओके, एंड यहाँ पे अगर मैंने लिस्ट नोड x लिखा होता, सो आई एम कंस्ट्रक्टिंग अ नोड p हु हैज वैल्यू x इन इट एंड इट्स नेक्स्ट पॉइंटर इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स नल. सो दिस इज द थिंग कंस्ट्रक्टर. नाउ आई विल शो यू द कोड, मेन कोड. मेरे पास है क्या, मैंने जो करंट फंक्शन था उसको एक रिकर्जन फंक्शन की तरह ट्रीट किया, ठीक है. और उसमें सबसे पहली चीज मुझे क्या डालनी थी, बेस केस. आई पुट द बेस केस, हेड इज नॉट नल और नल है, ठीक है. दैट इज करंट हेड या नल है या फिर हेड का नेक्स्ट नल है, तो आई विल सिंपली रिटर्न हेड फ्रॉम हेयर. ओके, and at the end after that I'll simply do the swapping thing in these 3 operations and after that I will call the recursion function. ठीक है, तो अब समझो थोड़ा सा इसको. एक मैंने टेम्परेरी नोड लिया head 1 and in that सपोज ये मेरी लिंक लिस्ट थी, ठीक है. एक मैंने टेम्परेरी नोड लिया head 1 and head 1 is pointing and head 1 सिंपली इसके इक्वल हो गया राइट नाउ, ठीक है. फिर मैंने एक करंट नोड लिया और उसमें मैंने क्या स्टोर किया, हेड का नेक्स्ट दैट इज दिस नोड, दिस इज माय करंट नोड. आफ्टर दैट जो हेड 1 का नेक्स्ट था, हेड 1 का नेक्स्ट, ठीक है. मैंने सॉरी हेड 1 इसको नहीं, एग्जैक्टली हेड 1 इसको लिया था. अब जो हेड 1 का नेक्स्ट था दैट इज दिस थिंग, इसको मैंने यहां से हटाया एंड आई पॉइंटेड दिस पॉइंटर टूवर्ड्स हेड. यू कैन शो सी दैट थिंग हियर. ओके, एंड आफ्टर दैट जो हेड का नेक्स्ट था दैट इज ये वाली लाइन, ये किसको पॉइंट करेगी, सिंपली इसको. और इसको पॉइंट करने के पहले मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे रिकर्जन फंक्शन कॉल कर दिया, दैट इज स्वैप पेयर्स करंट. करंट क्या था, एग्जैक्टली ये वाला नोड करंट. मैंने यहाँ पे रिकर्जन फंक्शन में ये नोड पास कर दिया एज हेड एंड जो मेरा हेड था इनिशियल हेड दैट विल पॉइंट टू दिस नोड राइट नाउ. एंड एट द एंड आई विल सिंपली रिटर्न मेन हेड 1 एज द हेड ऑफ द लिंक लिस्ट. ओके, सो आई होप यहाँ तक का सारा कोड आपको समझ में आ गया होगा. स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट इन द वीडियो यू कैन जस्ट आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन. If you haven't checked Newton School yet, just go and check newtonschool.com and .co and just check their pay after placement program. And application for full stack development course October batch is open right now, so you can apply in that. And also check their launchpad initiative in which they are providing you free courses, absolutely free courses. Do the quizzes there, get certificates after completion of any course. Use Newton School ID for coding part. And just thank you guys for watching this video and just go and subscribe Newton School Code Kitchen YouTube channel. Thank you guys for watching.